Fundamental Classes Faridabad YouTube channel. Please like, share and subscribe the channel so that you are able to see other videos of this channel. Fundamental Classes, Next Door Shopping Mall, Sector 76, Faridabad. Class 10 Science, Study Material, Chapter 5, Periodic Classification of Elements. Number 1, Periodic Classification of Elements. The periodic table is a method of arranging the elements in such a way that the elements having similar properties are grouped in the same vertical column or group. Column is also called a group. 2. Need for classification of elements. To study a large number of elements easily, various attempts were made. The attempts resulted in the classification of elements in the modern periodic table. Modern periodic table is the latest development in periodic classification of elements. Number 3, periodicity of properties. The repetition of properties of elements after certain regular intervals is known as periodicity of properties. Earlier attempts of the classification of elements. अब लेटेस्ट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उससे पहले जो अटेम्प्ट्स की गई क्लासिफिकेशन के लिए वो निम्नलिखित हैं. नंबर 1, डेबरेनर्स ट्राइड. नंबर 2, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. नंबर 3, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. We will discuss all of three one by one. We would discuss about modern periodic table after these three earlier attempts. Dobryner's triad. This classification is based on the atomic mass. In Dobryner's triads, elements were arranged in order of increasing atomic masses in groups of 3 elements each having similar properties. The atomic mass of middle element of the triad was nearly equal to the average of the atomic masses of the other 2 elements. For example, lithium, sodium, potassium. Atomic mass of lithium is 6.9, atomic mass of sodium is 23 and atomic mass of potassium is 39.1. So if you take the average of 6.9 and 39.1, we would get approximately 23. Limitations of Dobryner's triads. Dobryner could not arrange all the known elements having similar properties in the form of triads. Dobryner could identify only 3 triads. Newland's law of octaves. In Newland's law of octaves, elements were placed in order of increasing atomic masses. The physical and chemical properties of every 8th element were repetition of the properties of the first element. Limitations of Newland's law of octaves. Law of octaves was applicable only up to calcium element. The law of octaves could be applicable for lighter elements only. Newland adjusted 2 elements in the same slot, copper and nickel, having different properties. According to Newland, only 56 elements existed in nature, and he argued that no more elements would be discovered in future. This was the drawback. 7. Mendeleev's periodic table. Mendeleev periodic table was based on the physical and chemical properties of elements and their atomic masses. Mendeleev periodic law. According to this, the physical and chemical properties of the elements were periodic function of their atomic masses. Merits of Mendeleev's periodic table. Mendeleev left vacant places in his table which provided an idea for the discovery of new elements. Example, ईका बोरोन. बोरोन से अगला एलिमेंट का नाम ईका बोरोन दिया मेंडलीव ने. इसी प्रकार एल्यूमिनियम से अगले एलिमेंट का नाम ईका एल्यूमिनियम
और सिलिकॉन से नेक्स्ट एलिमेंट का नाम इका सिलिकॉन मेंडलीव ने दिया। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल प्रेडिक्टेड प्रॉपर्टीज ऑफ सेवरल अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन इन मेंडलीव्स periodic table. It was useful in correcting the doubtful atomic masses of some elements. Noble gases could be accommodated in the Mendeleev's periodic table without disturbing the periodic table after the discovery of noble gases. Vertical columns were called groups, horizontal rows were called periods. Limitations of Mendeleev's periodic table. No fixed position of hydrogen could be given in Mendeleev's periodic table. हाइड्रोजन को एक निश्चित स्थान मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल में नहीं दिया। एग्जाम्पल, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन with alkali metals first group and halogens 17th group could not be finalized. B. Second limitation मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की, नो प्लेस फॉर आइसोटोप्स, आइसोटोप्स को कोई स्थान नहीं दिया। पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स वर नॉट डिसाइडेड। एग्जाम्पल, क्लोरीन के 2 आइसोटोप हैं, एक का एटॉमिक मास 35 और एक का एटॉमिक मास 37 है। 8. द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। द मॉडर्न periodic table is the latest development in the periodic classification of elements. The modern periodic table is given below. In 1913, Henry Moseley showed that atomic number of an element is a more fundamental property than its atomic mass. तो इस प्रकार जो है ये पहली पीरियोडिक टेबल बनी जो कि एटॉमिक नंबर पर बेस थी और एटॉमिक नंबर पर ही किसी भी एलिमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स डिपेंड करती है। ग्रुप्स, देयर आर 18 ग्रुप्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जैसा कि ऊपर दिखाया गया है। पीरियड, देयर आर 7 पीरियड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और नीचे जो लेंथेनाइट सीरीज़ हैं और जो एक्टिनाइट सीरीज़ हैं वो 6th और 7th पीरियड के अंदर ही आ जाती हैं, लेकिन वो अलग से दिखाई जाती हैं। पीरियड, देयर आर 7 पीरियड्स। द हॉरिजॉन्टल रोज इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स। देयर आर 7 पीरियड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, the physical and chemical properties of elements are the periodic function of their atomic number. भौतिक और रासायनिक गुण एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करते हैं। दिस इज द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एटॉमिक नंबर, जिसको हम Z से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स present in the nucleus of an atom of an element. Modern periodic table contains 18 vertical columns known as groups and 7 horizontal rows known as periods. On moving from left to right in a period, the number of valence electrons increase from 1 to 8. On moving from left to right in a period, number of shells remain same, क्योंकि वही शेल कंप्लीट होता जाता है। All the elements of a group of periodic table have the same number of valence electrons and same chemical properties. तो एक वर्टिकल कॉलम जिसको ग्रुप बोलते हैं उसमें एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं, सिमिलर होती हैं। ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो किस प्रकार चेंज होती हैं वो हम इन 5 पार्ट्स में
स्टडी करेंगे। नंबर 1 वैलेंसी, नंबर 2 एटमिक साइज और एटमिक रेडियस, नंबर 3 मेटेलिक करैक्टर और इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, क्योंकि मेटल्स में इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होती है, नंबर 4 नॉन मेटेलिक करैक्टर और इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर, और नॉन मेटल्स में इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर होती है। केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ metals and non-metals. We would discuss these trends one by one. Number 1 valency. The valency of an element is determined by the number of valence electrons present in the outermost shell of its atom. एक एटम के जो outermost shell में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसी से हम वैलेंसी का पता लगाते हैं। दैट इज वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी of an element on moving from left to right in a period. The valency first increases from 1 to 4 and then decreases to 0, जैसा कि नीचे दिखाया गया है। टेक द केस ऑफ सेकंड पीरियड। एलिमेंट्स है हमारे पास लिथियम, ब्रिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। लिथियम की वैलेंसी 1 है, ब्रिलियम की वैलेंसी 2 है, बोरॉन की वैलेंसी 3 है, कार्बन की वैलेंसी 4 है, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, फ्लोरीन की वैलेंसी 1 है, और नियोन जो कि नोबल गैस है वो रिएक्ट नहीं करती, उसकी वैलेंसी 0 है। ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप द वैलेंसी रिमेन्स सेम बिकॉज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स द सेम। एग्जाम्पल, वैलेंसी ऑफ फर्स्ट ग्रुप, जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनकी वैलेंसी 1 है, और जो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनकी वैलेंसी 2 है। एटमिक साइज और एटमिक रेडियस। व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, एटमिक साइज और एटमिक रेडियस डिक्रीजेस, एंड व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, एटमिक साइज और एटमिक रेडियस इंक्रीजेस। Atomic size refers to radius of an atom. Atomic size is the distance between the center of the nucleus and the outermost shell of an isolated atom. कोई isolated atom है, अलग से कोई एटम है, उसके न्यूक्लियस के सेंटर से लेके जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट है वहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको हम एटॉमिक साइज कहेंगे या रेडियस कहेंगे, एटम का, परमाणु का। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, एटॉमिक साइज डिक्रीजेज बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज। प्रोटॉन्स बढ़ जाते हैं तो उससे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ जाता है, अट्रैक्शन बढ़ जाती है न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन्स पर। On moving from left to right along a period, the size of atoms decreases because on moving from left to right, the number of elements increases, the atomic number of elements increases, which means that the number of protons in the atoms increases. Due to large positive charge on the nucleus, electrons are pulled in more closely to the nucleus and size of atom decreases. प्रोटॉन्स बढ़ेंगे तो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस पर बढ़ता है तो उससे वो इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा खींचेगा, तो इससे जो साइज़ है एटम का वो कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एक्सेप्शन, द एटॉमिक साइज ऑफ नोबल गैसेज इन कोरस्पॉन्डिंग पीरियड इज लार्जेस्ट। दिस इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, क्योंकि जो नोबल गैसेज हैं, उत्कृष्ट गैसेज हैं, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पूरी तरह से फिल होती है क्योंकि उनका ऑक्टेट पूरा होता है, तो इसलिए उनका जो एटॉमिक साइज है वो सबसे बड़ा होता है पीरियड में। एटॉमिक साइज इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, जब हम ऊपर से नीचे एक ग्रुप में जाते हैं एटॉमिक साइज इंक्रीजेज बिकॉज न्यू शेल्स आर बीइंग एडिड इन स्पाइट ऑफ इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि और शेल उसमें जुड़ते जाते हैं
On going down in a group in the periodic table, the atomic size increases because a new shell of electrons is added to the atoms at every step. जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो नए नए शेल जुड़ते जाते हैं जिससे एटॉमिक साइज बढ़ता है. There is increase in distance between the outermost shell electrons and the nucleus of the atom. 13. मेटेलिक करैक्टर और इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर. जैसा कि हमें पता है कि मेटल्स में इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर है. मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से दे देते हैं और इसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर भी बोलते हैं. लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड मेटेलिक करैक्टर या इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर कम होता है और जब हम टॉप से बॉटम जाते हैं ग्रुप में तब मेटेलिक करैक्टर और इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर बढ़ता है. मेटेलिक करैक्टर इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन्स. तो मेटेलिक करैक्टर में जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है. अमंग द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब हम एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं मेटेलिक करैक्टर डिक्रीजेज बिकॉज ए टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज. तो जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो अट्रैक्शन न्यूक्लियर्स का इलेक्ट्रॉन्स पर बढ़ जाता है. तो इसलिए एटम इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से नहीं देगा. मेटेलिक करैक्टर व्हेन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप इंक्रीजेज. जब हम ऊपर से नीचे एक ग्रुप में आते हैं तो मेटेलिक करैक्टर बढ़ता है बिकॉज द एटॉमिक साइज एंड टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज. क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ता जाएगा, ज़्यादा शेल उसमें आ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स ईजिली एटम दे सकेगा. इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर इज द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू रिपेल द शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवे फ्रॉम इट इन ए कोवलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल. जैसा कि हमें पता है कोवलेंट बॉन्ड मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है. तो मेटेलिक करैक्टर और इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड डिक्रीजेज एंड वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप इट इंक्रीजेज. मेटेलिक करैक्टर इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन्स. Along the period from left to right, metallic character decreases because the tendency to lose electrons decreases due to increase in nuclear charge. Metallic character when moving from top to bottom in a group increases because the atomic size and tendency to lose electrons increases. जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो शेल्स जुड़ते हैं जिससे जो है इलेक्ट्रॉन एटम आराम से इजीली दे सकता है. तो मेटेलिक करैक्टर बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर भी बढ़ जाएगा. इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर इज द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू रिपेल द शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवे फ्रॉम इट इन ए कोवलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल. तो जैसा कि कोवलेंट बॉन्ड मॉलिक्यूल्स में शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर में जो एटम है वो दूसरे एटम को जो शेड पेयर है उसको देता है, रिपेल करता है उसकी तरफ. ट्रेंड ऑफ एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर इज सिमिलर टू मेटेलिक करैक्टर. द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज गिवन बिलो फॉर रेफरेंस. नॉन मेटेलिक करैक्टर और इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर. जैसा कि नॉन मेटल्स होती हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को लेती हैं और इसी गुण को हम इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर भी बोलते हैं. लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड इट इंक्रीजेज. क्योंकि जब हम लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाते हैं तो नॉन मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज होता है तो टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बढ़ती है क्योंकि राइट साइड में पीरियड के राइट साइड में नॉन मेटल्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं और इस गुण को हम इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर भी बोलते हैं. लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड नॉन मेटेलिक करैक्टर एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर increases and when we go from top to bottom in group
non-metallic character and electronegative character decreases. Non-metallic character is a tendency of an atom to gain electrons along the period from left to right. Non-metallic character increases because tendency to gain electrons increases due to increase in nuclear charge. On moving from top to bottom in a group, non-metallic character decreases because atomic size increases and tendency to gain electrons decreases. जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो ज़्यादा शेल जुड़ जाते हैं तो नॉन मेटालिक करैक्टर कम हो जाएगा. Electronegativity is the tendency of an element to attract the shared pair of electrons towards it in a covalent bonded molecule. The trend of electronegative character is similar to the non-metallic character. Chemical reactivity. In metals, chemical reactivity of metals increases down the group because tendency to lose electrons increases. जब हम ऊपर से नीचे आते हैं metals के अंदर फर्स्ट ग्रुप में या सेकंड ग्रुप में तो ज़्यादा शेल हो जाते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन देना आसान हो जाता है. इन नॉन मेटल्स केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप बिकॉज टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेज. नेचर ऑफ ऑक्साइड्स. मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. एग्जाम्पल Na2O, MgO, etc. Non-metal oxides are acidic in nature. Example CO2, SO2, etc. Fundamental Classes YouTube channel. Please like, share and subscribe the channel so that you are able to see other videos of this channel. Fundamental Classes, next door shopping mall, sector 76, Faridabad. Appendix and टर्मिनोलॉजी. मैजिक नंबर की बहुत इंपॉर्टेंस है पीरियोडिक टेबल में और ये मैजिक नंबर है 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32. इसका मतलब है कि पहले पीरियड में 2 एलिमेंट्स हैं, दूसरे और तीसरे पीरियड में 8, 8 एलिमेंट्स हैं, चौथे और पाँचवें पीरियड में 18, 18 एलिमेंट्स हैं और छठे और सातवें पीरियड में 32, 32 एलिमेंट्स हैं. द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन्थ पीरियड्स हैव 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 एलिमेंट्स respectively. You can remember the atomic number of each element in a column or group by using these magic numbers. जैसा कि नोबल गैसेस हैं उसमें अगर हम ये नंबर जोड़ते जाएं तो अगला नोबल गैस का एटॉमिक नंबर आता जाएगा. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड एज देयर इज ग्रेजुअल इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स. क्योंकि ज़्यादा शेल्स उसमें जुड़ते हैं तो इसलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता जाएगा. आर्गन गैस इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब. एट प्रेजेंट देर आर 118 एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल. ओनली 94 एलिमेंट्स आउट ऑफ 118 एलिमेंट्स अकर इन नेचर. नेचर में केवल 94 एलिमेंट्स हैं, बाकी एलिमेंट्स सिंथेटिक हैं, लैब में बनाए गए हैं. इन द इंडियन म्यूजिक सिस्टम देर आर 7 म्यूजिकल नोट्स सा रे गा मा पा धा नी. एवरी 8th नोट इज सिमिलर टू द फर्स्ट वन एंड इज द फर्स्ट नोट ऑफ द नेक्स्ट स्केल. नोबल गैसेज वर डिस्कवर्ड वेरी लेट बिकॉज नोबल गैसेज आर इनर्ट. क्योंकि वो किसी से रिएक्ट नहीं करती, इसको इनर्ट बोलते हैं. एंड प्रेजेंट इन वेरी लो कंसंट्रेशन इन दी एनवायरनमेंट. और एटमॉस्फेयर में बहुत कम मात्रा में मिलती हैं इनर्ट गैसेस.
जस्ट लाइक हेलोजन्स, हाइड्रोजन ऑल्सो एग्जिस्ट एज डाईएटमिक मॉलिक्यूल। हेलोजन्स की तरह ही हाइड्रोजन भी डाईएटमिक मॉलिक्यूल के रूप में मिलता है, जैसे H2, Cl2। आइसोटोप्स हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास अलग अलग होता है। हाइड्रोजन हैज़ 3 आइसोटोप्स, हाइड्रोजन, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम। हाइड्रोजन 1H1, ड्यूट्रियम 1H2, ट्रीटियम 1H3। तीनों का एटॉमिक नंबर 1 है लेकिन एटॉमिक मास अलग अलग है। क्लोरीन हैज़ 2 स्टेबल आइसोटोप्स, एक का एटॉमिक मास 35 है और एक का 37 है। एटॉमिक नंबर क्लोरीन का 17 होता है। क्लोरीन आइसोटोप जिसका एटॉमिक मास 35 है अकाउंट्स फॉर रफली 3 आउट ऑफ एवरी 4 नेचुरली अकरिंग क्लोरीन एटम्स। तो क्लोरीन 35 अबंडेंस ज़्यादा मात्रा में मिलता है। क्लोरीन 36, क्लोरीन का आइसोटोप जिसका एटॉमिक मास 36 है, इज ऑल्सो नॉन नेचुरली एंड इज ए रेडियो एक्टिव आइसोटोप, और ये रेडियो एक्टिव है, अपने में से अल्फा बीटा गामा रेज छोड़ता है, विद ए हाफ लाइफ ऑफ अबाउट 30,000 ईयर्स, और इसकी हाफ लाइफ 30,000 ईयर्स है। देर इज एन एनोमली when it comes to the position of hydrogen because it can be placed either in group 1 or group 17 in the first period। तो हाइड्रोजन को हम फर्स्ट ग्रुप और 17 ग्रुप किसी में भी रख सकते हैं क्योंकि हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो फर्स्ट और 17th ग्रुप दोनों से मिलती हैं। रिकॉल दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी accommodated in a shell depends on the formula 2n2 where n is number of the given shell from the nucleus। पहला शेल है उसके लिए n1 हो जाएगा, दूसरे शेल के लिए n2 हो जाएगा, तीसरे शेल के लिए n3 हो जाएगा एंड सो ऑन। फॉर एग्जांपल फर्स्ट शेल है उसको k शेल बोलते हैं, उसके लिए n1 हो गया तो 2n की 2 1 रेज़ टू पावर 2 तो 2। हेंस द फर्स्ट ऑर्बिट और शेल हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सेकंड एल शेल, सेकंड शेल n2 हो गया। फॉर एल शेल 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। हैंस सेकंड ऑर्बिट और शेल हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसी प्रकार तीसरे शेल के लिए जिसको हम m शेल बोलते हैं उसके लिए n3 हो गया, तो 2 n की 2 3 रेज़ टू पावर 2 18। हैंस थर्ड ऑर्बिट और शेल हैज़ 18 इलेक्ट्रॉन्स। इसी प्रकार फोर्थ शेल जिसका नाम n शेल है उसके लिए n4 होता है, तो इसके लिए 2n की 2 बराबर है 2 इंटू 4 रेज़ टू पावर 2 32, तो इसमें 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हैंस फोर्थ ऑर्बिट और शेल हैज़ 32 electrons and so on। In the modern periodic table, a zigzag line separates metals from non-metals। The borderline elements, और इस बॉर्डर पर जो एलिमेंट्स हैं वो हैं बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम एंड पोलोनियम। ये दोनों की प्रॉपर्टीज़ मेटेलिक और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ दोनों दिखाते हैं एलिमेंट्स। show properties of both metals and non-metals and are called metalloids or semi-metals। Electronic configuration of first 20 elements। तो हमारे पास ये 20 एलिमेंट्स हैं, एटॉमिक नंबर, सिंबल, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स हैं। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1। हीलियम एटॉमिक नंबर 2, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2 क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं। सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स हैं। एटॉमिक नंबर 3 है लिथियम का, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2 1। ब्रिलियम एटॉमिक नंबर 4, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2 2। बोरॉन एटॉमिक नंबर 5, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2 3। कार्बन इसका एटॉमिक नंबर 6 है,
2,4 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। नाइट्रोजन इसका एटॉमिक नंबर 7 है, 2,5 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 इसकी 2,6, पहले ऑर्बिट में 2 और दूसरे ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 7। नियोन एटॉमिक नंबर 10, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8। नोबल गैस है, क्योंकि ऑक्टेट पूरा है तो ये किसी से रिएक्ट नहीं करती, अक्रियाशील है। थर्ड पीरियड 8 एलिमेंट्स। सोडियम एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज 281। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स। एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13, 283 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। सिलिकॉन एटॉमिक नंबर 14, 284 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर 15, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड में 8 और थर्ड में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सल्फर एटॉमिक नंबर 16, फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकंड में 8 और थर्ड में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, फर्स्ट ऑर्बिट 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट 8 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड ऑर्बिट 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसकी वैलेंसी, क्योंकि थर्ड ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। आर्गन अगेन नोबल गैस, एटॉमिक नंबर 18, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 288। तो इसका ऑक्टेट पूरा है तो ये नोबल गैस है, रिएक्ट नहीं करती, इनर्ट गैस है। फोर्थ पीरियड, इसमें 18 एलिमेंट्स होते हैं। पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19, 2881, इसकी वैलेंसी 1 है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, 2882, तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।